Good morning everyone. Welcome to our channel RDS Group. Class, as you know, yesterday we have started our new chapter number 7. What was the title of the chapter? The title of the chapter was Eureka, the story of Archimedes. As you all know, Eureka is a Greek word which means I have found it. Yeah, I have asked questions and you all have given the answer. That means you have listened my video carefully. So this is good thing. Okay, so as you all know that this is story related to the experiment of Archimedes. Okay, we all have learned about the story of Archimedes, but where I have end my point, I have only told the name of the Archimedes there. Okay, that was the only starting point for Archimedes. Okay, before it we have only seen the story of a war and about the king of Syracuse. Okay, so first I will revise you for few minutes. So as you all know the story, in the story Eureka, the story of Archimedes, a long time ago there was a Greek city named Syracuse, and at that time it was in very great trouble. Yeah. And it had been a war between the Carthage and Syracuse. There were a battle between Syracuse and Carthage, and at that time Syracuse was in trouble, and it was defeated badly. So the soldiers of Syracuse decided to change their leader. They thought if they will change their leader, then they will definitely get the victory. So they have thought to change their leader, and in the same manner they have changed. After that, a new leader was elected, whose name was Hiero. Hiero was the new leader, and he was young, he was very brave and clever. So he started his strategy in the battle, and at last they won the battle. After so many years they won the battle. So the mob of this city of Greek city of Syracuse city was very excited, was very impressed with their new leader. So they elected Hiero as a king. Okay, after that, to express his gratitude, actually when the mob made him and elected him as a king, then he was very happy, and to express his gratitude to the god, to and I mean to say that he wanted to express his thanks to the god. So he decided to to present the god a laurel wreath, so in the temple, in his favorite temple. So Hiero, who was now the king of Syracuse, had decided to give a gift to their best temple, and he wanted to give as a he wanted to give gift of wreath. Okay, which is made of pure gold. So he called the best goldsmith in the city and gave him some gold for making the wreath, and he told to the goldsmith that made the wreath for the god, but it should be pure, there should be no amalgamation. Okay, so it should be pure, वो pure होना चाहिए, उसमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए. And then in the same manner as he has instructed to the goldsmith has made the wreath which was purely made of gold, and he gave to the Hiero, and to see the wreath as he has told, the wreath was same as he has told. So he was very inspired with the goldsmith and give him handsomely
and sent him from the way. After that, when before Hero presented the bread to the temple, he had heard some rumors in the city that some people were talking about the bread, that it was not made of pure gold, and Goldsmith had cheated the king. So after hearing this, he became very disturbed and tried to find the truth. What is the truth? He thought if it is purely made of gold, then there is no problem. If it is not pure, then it is a great problem. If the goldsmith is yes, if the goldsmith is pure hearted, and he was not cheated to me, he has not cheated to me, then I will not punish him. But if he had cheated me, so then I will surely punish him. Okay, so but problem is that how he will come to know that there is, yes, कि how he came to know. Problem is that how will he come to know that it is pure or not. So he was very disturbed. So his name was, his cousin's name was Archimedes. So so he told all the story to the Archimedes, who was his cousin. And at that time, Archimedes was, as everybody know about the Archimedes, was a great scientist, and he had discovered so many things. So and at that time, Archimedes was only 22 years old. He was already a famous at that time. Only at the age of 22 years, Archimedes was a famous mathematician, engineer, and scientist. Then Archimedes was so consumed by this puzzle that he thought about it day and night. Okay, as you all know that we have completed till here yesterday, so today we will start from the here. So everybody go to the page number 43. Okay, and listen very carefully. As you can see, yes, this is the व्रत. व्रत क्या होता है? कहीं कहीं इसको एज अ गार्लैंड की तरह बोला गया है कि जैसे पुष्पों की माला बनती है, और कहीं पे इसको ये जो सर पे नहीं लगाया जाता है, जैसे कि जो शीट्स पे लगाते हैं किंग वगैरह, ये पुष्पों का. सो कहीं कहीं इसको ये बोला गया है कि ये वो उस टाइप की गार्लैंड है जो सर पे हेड पे लगाई जाती है. सो यही व्रत इसने, ये गोल्ड की बनी हुई है, यही बनवाया था. सो फिर क्या होता है? आर्किमिडीज वॉज सो Archimedes was so consumed by this puzzle and he thought about it day and night. अब क्या होता है? Actually it was a big question. अब कोई भी इस चीज़ को कैसे बता सकता है कि इसमें गोल्ड है कि नहीं? ऐसे तो नहीं बता सकता, देख के बता देगा? नहीं बता देगा. तो और कितना है ये भी नहीं बता सकता है. सो डे एंड नाइट ही was thinking about the problem. How could he find out if the breath was प्योर गोल्ड और नॉट विदाउट मेल्टिंग इट डाउन? वो क्या मतलब अपने आप में ही कहता है, वो बहुत दिन रात डे नाइट ही वॉज थिंकिंग अबाउट दैट, हाउ आई विल कम टू नो, हाउ आई विल फाइंड द ट्रूथ दैट इट इज़ मेड ऑफ गोल्ड और नॉट विदाउट मेल्टिंग इट. जब तक कि जो गोल्ड स्मिथ होते हैं, जब तक कि वो भी पूरी तरह से उसको मेल्ट नहीं करते, जब तक कि सोना पिघलाया नहीं जाता है, तब तक नहीं पता चलता है, मेल्ट नहीं किया जाता है, तब तक नहीं पता चलता है इट इज़ प्योरली गोल्ड और नॉट, कि उसमें क्या मिक्स है या नहीं मिक्स है. तो वही कहने का मतलब है कि वो भी नहीं पता कर सकता था. वन डे स्टिल लॉस्ट इन थॉट, एक दिन वो ऐसे ही खोया हुआ था अपने थॉट में. एक्चुअली वो साइंटिस्ट का काम ही होता है हर वक्त कुछ ना कुछ वो सोचते रहते हैं. तो जब उसे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी, ही हैड टेकन इट एज अ चैलेंज. सो एवरी टाइम ही वॉज थिंकिंग अबाउट दैट प्रॉब्लम. सो वन डे स्टिल लॉस्ट इन थॉट ऑन हाउ टू डिस्कवर द ट्रूथ. एक दिन वो इसी थॉट में खोया हुआ था, कैसे हम डिस्कवर करें ट्रूथ को, कैसे पता करें ट्रूथ को बिफोर द सेरेमनी. वो जो सेरेमनी होनी थी, सेरेमनी मीन्स ऑन विच डे ही विल द किंग विल प्रेजेंट द
गिफ्ट टू द गॉड, कि जिस दिन वहाँ पे वो देंगे जा कर के, भगवान को चढ़ाएंगे जा कर के, उस वो सेरेमनी थी जिस दिन, उससे पहले वो कैसे पता करे, सेरेमनी मतलब वो दिन जो डिसाइड था जिस दिन उनको वो भेंट करना था भगवान को। सो आर्किमिडीज वॉन्डर्ड इनटू द पब्लिक बाथ हाउस टू हिज मॉर्निंग बाथ। तो वो जो आर्किमिडीज होता है जैसे डेली वेज में जाता था पब्लिक बाथ में नहाने के लिए, एज यूजुअल वो गया बाथ में। एज ही पेंसिवली मीन्स होता है कि बहुत ज़्यादा सोच में था उस टाइम वो। सो आप कह सकते हो एज ही पेंसिवली इमर्स्ड हिमसेल्फ इनटू अ टब ऑफ वाटर। जैसे ही मतलब वो सोच रहा था और सोचते सोचते उसने, जब आप कुछ सोच रहे होते तो आपको जो एक्टिविटीज़ करनी है, आपके नहाने का टाइम है, आप सोचते रहोगे, बट जो आप काम करो हाथ पैर आपके चलते रहेंगे। सो ही इमर्स्ड हिमसेल्फ इन द टब दैट वॉज फुल ऑफ वाटर। जो वाटर का टब था उसने अपनी बॉडी को उसमें डाला, दैट मीन्स वो उसके अंदर नहाने के लिए टब में गया। फिर क्या हुआ, ही नोटिस्ड दैट द वाटर इज स्पिल्ड आउट ओवर द साइड्स ऑफ द टब। तो वो देखता है जैसे ही वो उसके अंदर जाता है तो उस टब से पानी बाहर आने लगता है ना। द वाटर स्टार्टेड टू स्पिल आउट, बाहर आने लगता है। सो साइड से बाहर आने लगता है। द मोर ही लोवर्ड हिमसेल्फ इनटू द टब, और वो जितना खुद को टब में डुबोता जाता है, द मोर वाटर फ्लोड आउट ओवर द साइड। तो क्या होता है, उतना ही ज़्यादा पानी बाहर, जितना जितना वो खुद को पानी में डुबोता जाता है उतना उतना पानी बाहर आता जाता है। इट वॉज एट दिस पॉइंट दैट, और यही वो पॉइंट था, ही डिस्कवर्ड द सोल्यूशन टू हीरोज़ प्रॉब्लम, जिससे उसने जो हीरोज़ की प्रॉब्लम थी उसका पूरा सोल्यूशन ढूंढ दिया। सो एक्साइटेड वॉज ही विद द डिस्कवरी दैट ही जम्प्ड आउट ऑफ द टब, और आफ्टर फाइंडिंग द वे ही वॉज वेरी एक्साइटेड, कि उसने अपनी डिस्कवरी कर दी, उसने खोज कर दी। ही वॉज वेरी एक्साइटेड, और वो टब से बाहर आया एक्साइटेड होगा, एंड जम्प आउट ऑफ द टब एंड रैन थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ सायरक्यूज, और सायरक्यूज की स्ट्रीट गलियों में भागता हुआ दौड़ता हुआ गया, विदाउट रिमेंबरिंग टू पुट हिज क्लॉथ ऑन। मतलब उसे ये भी नहीं याद था कि उसने अपने कपड़े पहने हैं कि नहीं, बस वो भागता जा रहा था। पूरी तरह से उसने अपने कपड़े भी नहीं पहने थे, आधे अधूरे पहन के वो क्या करता है, भागता चला जाता है। देन एंड शाउटिंग यूरेका यूरेका, विच इन ग्रीक मीन्स आई हैव फाउंड इट। यूरेका यू ऑलरेडी नो का क्या मतलब होता है, आई हैव फाउंड इट। सो वो मतलब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है यूरेका यूरेका। यूरेका का मीनिंग क्या है, हाँ मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मैंने इसे ढूंढ लिया। तो ऐसा वो बोलता है, यूरेका यूरेका, विच इन ग्रीक मीन्स आई हैव फाउंड इट, आई हैव फाउंड इट। बट वॉट हैड आर्किमिडीज फाउंड इन दैट टब ऑफ वाटर। लेकिन आप ही बताओ कि उस वाटर के टब में उसने ऐसा क्या ढूंढ लिया, दैट वॉज रिलेटेड टू दैट गोल्ड, कि वो उस गोल्ड से रिलेटेड था। नाउ लिसन, what he had discovered was that that any object when submerged in water will make some of the water overflow। क्या होता है कि जब कोई भी चीज़ जो उसने ढूंढी थी, जो उसने खोजी थी, वो क्या थी, कि कोई भी चीज़ जब किसी भी ऑब्जेक्ट को, व्हेन वी इमर्स सम ऑब्जेक्ट इन वाटर, वाटर में हम कोई भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब इमर्स करते हैं, सबमर्ज करते हैं, डुबोते हैं, विल मेक सम ऑफ द वाटर ओवरफ्लो। तो क्या होता है, पानी ओवरफ्लो हो जाता है, ऊपर की तरफ आता है, और डिस्प्लेस द वाटर, और पानी को हटाता है। जब आप किसी चीज़ को डुबोएंगे तो वो चीज़ क्या करती है, अपनी उतनी जगह बना लेती है, और उतना वाटर क्या करती है, डिस्प्लेस कर देती है, वहाँ से हटा देती है। देन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ वाटर दैट गेट डिस्प्लेस कुड बी मोर। क्या होता है, जो वाटर वहाँ से हटाया जाता है वो कभी कभी क्या हो सकता है, वो ये भी हो सकता है कि द अमाउंट ऑफ वाटर दैट गेट डिस्प्लेड कुड बी मोर, वो हो सकता है ज़्यादा हो, और इट कुड बी लेस या कम हो, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज समझ। ये जो डिपेंड करता है वो उस ऑब्जेक्ट के साइज पे करता है। सो द डिस्प्लेस वाटर इज मोर देन द ऑब्जेक्ट, और लेस देन द ऑब्जेक्ट, और इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, इज डिपेंड ऑन द ऑब्जेक्ट, उसके शेप पे, इट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के शेप पे डिपेंड करता है। सो ही कुड मेजर द वॉल्यूम ऑफ द रेथ
बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट डिस्प्लेज। तो वो बोलता है कि वो जो वॉल्यूम है वृत्त का, जो वॉल्यूम दैट मीन्स आयतन जो होता है उसको मेज़र कर लेगा, और वॉल्यूम ऑफ द वृत्त बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट डिस्प्लेज, और जितना ही वो वृत्त वाटर डिस्प्लेस करेगा उसके अमाउंट को क्या कर लेगा, वेट कर लेगा, और उससे उसको पता चल जाएगा, मेज़र कर लेगा तो उससे उसको पता चल जाएगा। एज ही टोल्ड दैट मीन्स इन द bathtub he has discovered a new discovery that was related to this clue। ओके तो उसमें मतलब उसका कहने का मतलब ये था कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है वो अपनी जो वेट के बराबर, अपनी उसके बराबर ही, साइज़ के बराबर ही पानी को वहाँ से डिस्प्लेस करता है, और जो हटाया गया होता है, जो वहाँ से पानी अब निकल के बाहर आता है, और जो वाटर में चीज़ गई है उसका जो वेट होता है जो वो इक्वल होता है, उन दोनों का वेट क्या होता है, इक्वल। उतना ही पानी वस्तु हटाएगी, ऑब्जेक्ट हटाएगा जितना कि उसका उस समय वॉल्यूम होगा। ओके या देन व्हाट हैपन इन फिजिक्स व्हेन वी स्पीक द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फिजिक्स में, अभी आप बड़े क्लास में पढ़ेंगे, बट इन साइंस यू ऑल हैव स्टडीज समथिंग अबाउट दैट। फिजिक्स में आप बोलते हैं कि व्हेन वी स्पीक द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और डेंसिटी मीन्स होता है किसी चीज़ का घनत्व। अगर हम फिजिक्स में डेंसिटी की बात करते हैं किसी ऑब्जेक्ट की, वी आर कंसीडरिंग हाउ हैवी इट इज़ इन रिलेशन टू इट्स साइज़। तो हम ये बताते हैं कि वो कितनी हैवी है इसके साइज़ के रिलेशन में, वो कितनी हैवी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आयरन इज़ डेंसर देन वुड। जो आयरन होता है वो डेंसर होता है, घनत्व उसका होता है ज़्यादा। फॉर एग्जांपल के लिए जो आयरन होता है, लोहा होता है, उसका वो ज़्यादा डेंसर होता है किसे, देन वुड। लकड़ी से ज़्यादा घनत्व किसका होता है, आयरन का होता है। सो अ लंप ऑफ आयरन इज़ मच हैवियर देन अ पीस ऑफ वुड। तो क्या होगा, जो आयरन का पीस होगा वो वुड से ज़्यादा हैवी होगा। ऑफ कोर्स आज आप अभी देखिएगा, आफ्टर लिसनिंग द वीडियो यू ऑल विल टेक अ आयरन एंड टेक अ वुड ऑफ सेम वेट, और आप देखिएगा कि आपको हैवी कौन सा ज़्यादा लगेगा। एक लकड़ी का टुकड़ा उठाइएगा और उतना ही बड़ा एक आयरन का टुकड़ा उठाइएगा और देखिएगा किसका वेट ज़्यादा लगता है। सो अ लंप ऑफ हैवी इज इन द रिलेशन इट्स टू साइज। फॉर एग्जांपल आयरन इज डेंसर देन वुड, सो अ लंप ऑफ आयरन इज मच हैवियर देन अ पीस ऑफ वुड। जो लंप होता है आयरन का, जो एक आप आयरन का टुकड़ा लोगे वो ज़्यादा हैवी होता है किससे, वुड से, ऑफ द सेम साइज, सेम साइज़ के ही आप लीजिए। किसी भी वुड के एक पीस को उठाइएगा और एक किसी लोहे के उसको उठाइएगा, आप देखिएगा दोनों सेम साइज़ के लीजिए और बताइएगा कौन सा हैवी होता है। देन व्हाट हैपन, or much or smaller than a piece of wood of the same size. If you were to put a lump of iron and a piece of wood, both weighing the same, लेकिन अगर आप क्या करते हो, ये जो lump of iron है और पीस जो है वुड का, उसको आप वेट करते हो तो दोनों का वेट कैसा है, सेम है। इनटू द वाटर, पानी में दोनों का वेट कैसा होगा, सेम होगा। द वुड विच विल बी लार्जर, वुड मतलब उससे देखने में बड़ी होगी, एंड देयरफॉर विल टेक अप मोर स्पेस, और ज़्यादा स्पेस भी लेगी, फिर भी उनका वेट कैसा होगा, मतलब वो देखने में बड़ी भी आपको लग रही है, ठीक है, फिर भी ठीक है, जब आप उसका वेट करोगे तो सेम होगा। विल कॉज मोर वाटर टू डिस्प्लेस देन द डेंसर, क्या कह रहा है, द वुड विल कॉज मोर वाटर टू डिस्प्लेस देन द डेंसर स्मॉल लंप ऑफ आयरन। तो वो ज़्यादा स्पेस लेगी, जो वुड होगी वो ज़्यादा वाटर, विल कॉज मोर वाटर टू डिस्प्लेस देन द डेंसर, वो क्या करेगी, उससे ज़्यादा वाटर को डिस्प्लेस करेगी किसकी अपेक्षा, स्मॉल लंप ऑफ आयरन की जगह। द स्पेस दे ऑक्यूपाइड, और जो स्पेस ये लेती हैं, जितनी जगह लेती हैं, इज कॉल्ड वॉल्यूम। इसी को हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। क्लियर। सिमिलरली डिफरेंट मेटल्स ऑफ द सेम वेट, बाद में वो कहता है कि डिफरेंट, अलग अलग तरह के मेटल हो लेकिन उनका सेम वेट कैसा हो, समान हो। आप सेम ही वेट में तो कंपैरिजन करोगे, वेट उनका कैसा हो, सेम हो। ऑल्सो हैव डिफरेंट वॉल्यूम, लेकिन क्या होते हैं, उनके वॉल्यूम्स डिफरेंट डिफरेंट
होते हैं, ठीक है। वॉल्यूम में आयतन डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट आयरन इज डेंसर, आप जानते हो कि आयरन का घनत्व ज़्यादा होता है, एंड हैवियर देन एल्युमिनियम, और एल्युमिनियम से ज़्यादा जो है हैवी भी होता है आयरन। सो अ क्यूब ऑफ आयरन वेइंग अ किलोग्राम विल बी मच स्मॉलर देन 1 किलोग्राम क्यूब ऑफ एल्युमिनियम। सो हम ये कह सकते हैं कि आप ये देखोगे कि आयरन मोर डेंसर होता है देन एल्युमिनियम, हैवी भी ज़्यादा होता है। लेकिन आप सो अ क्यूब ऑफ आयरन वेइंग अ किलोग्राम, 1 किलोग्राम आप आयरन को वेट करिए, विल बी मच स्मॉलर, वो कम होगा देन 1 किलोग्राम क्यूब ऑफ एल्युमिनियम, 1 किलोग्राम एल्युमिनियम के क्यूब से। व्हेन बोथ क्यूब आर प्लेस्ड इन वाटर, लेकिन जब आप उन दोनों को वाटर में डालेंगे द एल्युमिनियम क्यूब विल डिस्प्लेस मोर वाटर देन द आयरन क्यूब, डेंसिटी उसकी ज़्यादा है, हैवी वो ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा वाटर कौन डिस्प्लेस करेगा, ज़्यादा वाटर एल्युमिनियम डिस्प्लेस करेगा, एल्युमिनियम क्यूब डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। आर्किमिडीज न्यू दैट गोल्ड वॉज डेंसर देन सिल्वर, अब आर्किमिडीज ये बात जानता था कि घनत्व किसका ज़्यादा होता है, गोल्ड का ज़्यादा होता है। सो अ पीस ऑफ गोल्ड वेइंग अ सर्टेन अमाउंट वुड बी स्मॉलर देन अ पीस ऑफ So a piece of gold weighing a certain amount would be smaller than a piece of silver weighing the same. So जो गोल्ड को अगर हम वेट करते हैं, so a पीस ऑफ गोल्ड वेइंग अ सर्टेन अमाउंट, ठीक है, एक निश्चित गोल्ड को हम वेट करते हैं, वुड बी स्मॉलर, वो कम होगा देन अ पीस ऑफ सिल्वर वेइंग द सेम, अगर मतलब उतने ही उसका सिल्वर को हम वेट करें सेम, तो क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो क्योंकि उसका वो डेंसर ज़्यादा होता है सिल्वर से, लेकिन अगर हम सेम वेट का लेते हैं तो क्या होगा, सो अ पीस ऑफ गोल्ड वेइंग अ सर्टेन अमाउंट वुड बी स्मॉलर, तो वो जो हाँ करेंगे तो कौन सा कम निकलेगा, जो गोल्ड का होगा वो कम निकलेगा, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है क्योंकि, ठीक है। इफ़ द गोल्ड स्मिथ हैड इंडीड स्टोलन सम ऑफ द गोल्ड, अगर गोल्ड स्मिथ ने चुराया है कुछ गोल्ड, दैट द किंग हैड गिवन हिम, जो कि किंग ने उसे दिया था, एंड रिप्लेस्ड इट विद एन इक्वल वेट ऑफ सिल्वर इन द व्रत, और उसी क्वांटिटी का उतना ही उसने उतने ही वेट का सिल्वर उसमें लगा दिया, देन द टोटल वॉल्यूम ऑफ द व्रत वुड बी ग्रेटर, तो क्या होगा, उस व्रत का वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा ना, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा अगर उसने लगा दिया है, ठीक है। फिर क्या होता है, देन द टोटल वॉल्यूम ऑफ द व्रत वुड बी ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ गोल्ड, क्योंकि गोल्ड ज़्यादा डेंसर होता है, तो जो वो है ना पानी क्या करेगा, कम डिस्प्लेस करेगा, सिल्वर क्या करेगा, वो ज़्यादा पानी डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। तो अगर उसने लगाया होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसमें चेंजेस दिखाई देंगे, तो वो ज़्यादा क्या होगा, वुड बी ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ द गोल्ड, अगर उसने यूज़ किया होगा तो उसके जो ओरिजिनल अमाउंट से वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, और उसे पता था ओरिजिनल अमाउंट कितना दिया, ये तो किंग को पता था ना, तो वो उससे ज़्यादा निकलेगा अगर उसने मिलाया होगा। फिर क्या होता है, द सोल्यूशन वॉज सिंपल, एक्चुअली इट वॉज अ वेरी टफ थिंग टू फाइंड आउट द वे। अब आप इस स्टोरी को समझिए, ये कितना टफ होगा जब फर्स्ट टाइम आर्किमिडीज ने इसको एज अ प्रिंसिपल रिप्रेजेंट किया होगा, दैट वॉज टू टफ। देन व्हाट हैपेंड, द सोल्यूशन वॉज सिंपल, सोल्यूशन बहुत सिंपल था। आर्किमिडीज जस्ट हैड टू कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ द व्रत to the volume of the amount of gold that hero had given to the goldsmith। अब क्या होता है कि सॉल्यूशन सिंपल था, आर्किमिडीज ने क्या कंपेयर किया, जस्ट हैड टू कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ द व्रत टू द वॉल्यूम ऑफ द अमाउंट ऑफ गोल्ड, वो जो व्रत का वॉल्यूम था उसने वो लिया, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द व्रत टू द वॉल्यूम ऑफ द गोल्ड दैट हीरोज हैड गिवन द अमाउंट, मतलब किसको, इसका वॉल्यूम उसने मेज़र किया व्रत का, और किसका वॉल्यूम, जो उसने गोल्ड दिया था उसका किया। देन एक्चुअली स्टोरी इज़ टू लॉन्ग, काफ़ी बड़ी स्टोरी है, सो टुडे वी विल ओनली कंप्लीट द स्टोरी, काफ़ी बड़ी स्टोरी है। ओके, सो क्या होता है, फर्स्ट आर्किमिडीज टुक टू आइडेंटिकल बॉल्स एंड प्लेस्ड ईच बॉल इन द मिडल ऑफ, इसको बाउल नहीं बोल पढ़ा करिए, बॉल इन द मिडल ऑफ द टू लार्ज वेसल्स। क्या होता है, फर्स्टली आर्किमिडीज टुक टू आइडेंटिकल बोल्स, दो बोल लेता है, बोल मीन्स जो कटोरे होते हैं बड़े बड़े से, वो लेता है, एंड प्लेस्ड ईच बोल इन द मिडल ऑफ टू लार्ज वेसल, और बड़े बड़े बर्तनों में वो बोलों को रख देता है, अलग अलग टू लिए और बड़े बड़े बर्तन लिए और उसमें उनको रख दिया। देन
ही देन फिल्ड ईच बोल विद द वाटर टू द ब्रिम, और फिर वो क्या करता है, उनमें पानी फिल कर देता है, वाटर फिल कर देता है. देन ही टुक अ लंप ऑफ गोल्ड एंड अ लंप ऑफ सिल्वर. फिर क्या करता है, गोल्ड का एक लंप लेता है टुकड़ा और एक सिल्वर का लंप लेता है. ईच वेइंग एग्जैक्टली द सेम एज द, दोनों का वेट जो है वो सेम है, एज द ब्रेथ, एंड gently lowered them into each bowl. देखिए क्या किया, he had taken 2 bowl and took them in a big vessel. After that he poured water into bowls. After that he had taken a lump of silver, a lump of gold of same weight, and then she submerged it into the बोल. अब क्या करता है, वो लंप जो दोनों लेता है उनको पानी में डाल देता है. ईच लंप डिस्प्लेस्ड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर. दोनों लंप क्या करते हैं, एक निश्चित पानी को बाहर गिराते हैं. मतलब अब बाहर कहाँ आ रहा है, वो जो एक बड़ा सा वेसल उन्होंने लिया था. विच स्पिल्ड आउट इनटू द वेसल. अब वो कहाँ पे पानी गिर रहा है, वो जो बड़े बड़े बर्तन थे उनमें. आर्किमिडीज मेजर्ड द डिस्प्लेस्ड वाटर केयरफुली. अब वो क्या करता है, केयरफुली उन वाटर को मेजर करता है. मशीन होती है हर चीज़ की, तो वह मेजर करता है. एंड जस्ट ही हैड थॉट, और वो सोचता है, द सिल्वर हैड डिस्प्लेस मोर वाटर देन द डो. देखिए जिसका घनत्व ज़्यादा होता है, जो ज़्यादा डेंसर होता है, वो कम डिस्प्लेस करेगा, और जिसका कम होता है, वेट से नहीं मतलब होता है, तो वो क्या करेगा, ज़्यादा करेगा. तो वो देखता है कि जो सिल्वर का है उसने ज़्यादा वाटर डिस्प्लेस किया है देन द गोल्ड. नाउ केम द फाइनल टेस्ट. अब फाइनल टेस्ट क्या होता है, दैट वाज द ओनली एग्जाम्पल दैट ही प्रूव हिज थिंग, वो अपनी चीज़ को प्रूव कर सके. नाउ केम द फाइनल टेस्ट. अब फाइनल टेस्ट आता है. आर्किमिडीज refilled both of the identical bowls with water again. Now he again refilled the identical bowl with the water, and this time he gently lowered the lump of gold which weighed exactly the same as the breath into the first bowl. अब वो उतना ही लंप ऑफ गोल्ड लेता है जितना कि डुबोया गया था, जितना कि which weighed exactly the same as the breath into the first bowl. जितना कि फर्स्ट बोल में उसने जितना क्वांटिटी का वो लिया था, उतना ही वो फर्स्ट बोल में व्रत के बराबर डालता है. एंड द व्रत इटसेल्फ इनटू द सेकेंड. और दूसरी बोल में मतलब जितना गोल्ड उसको दिया गया था, ठीक है, जितना गोल्ड उसको दिया गया था उसको तो पता था ना कितना दिया है, तो उतनी ही क्वांटिटी का उतना ही हैवी गोल्ड का लंप उसमें डाल देता है बोल में. और दूसरी बोल में क्या डालता है, वो जो व्रत बनी हुई थी ओरिजिनल, जो मैंने देखो किंग को पता था इतने का बनाना है, तो पहले तो उसे ये बात पता ही थी कि इतना सोने का मैंने दिया है, तो उतना जो सोने का लंप होता है वो डाल देता है. और दूसरे बोल में क्या करता है, दूसरी बोल में वो उस व्रत को, ओरिजिनल जो व्रत बनी थी उसको डाल दिया. अब आपके अकॉर्डिंग अगर दोनों गोल्ड के हैं प्योर, तो दोनों सेम वाटर डिस्प्लेस्ड करेंगे ना. अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज सिद्धांत, इफ देयर वॉल्यूम आर सेम देन दे विल डिस्प्लेस द सेम वाटर. अब सेम वाटर ही तो डिस्प्लेस करना चाहिए उसको, लेकिन क्या होता है, नाउ लिसन, इफ द व्रत वॉज मेड ऑफ गोल्ड, और मतलब फिर क्या होता है, इटसेल्फ इनटू द सेकेंड, और जो सेम व्रत होती है उसको उसमें डालता है दूसरे बोल में. इफ़ द व्रत वॉज मेड ऑफ प्योर गोल्ड, अगर जो व्रत है वो प्योर गोल्ड की बनी है, इट वुड डिस्प्ले एग्जैक्टली द सेम अमाउंट ऑफ वाटर एज द लंप ऑफ गोल्ड इन द फर्स्ट बोल रिगार्डलेस ऑफ दियर डिफरेंस इन शेप. इससे कोई मैटर नहीं करता उनका शेप कैसा है, उनका साइज़ कैसा है, अगर वो प्योर गोल्ड की बनी है तो वो भी उतना ही वाटर डिस्प्लेस करेगी जितना कि ये जो मैंने लंप ऑफ गोल्ड डाला है, जितना कि वो डिस्प्लेस कर रहा है. इफ़ द व्रत वॉज एन अलॉय ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर और एनी अदर मेटल, और अलॉय मीन्स होता है मिलावट, अगर उसमें कुछ मिला है, मतलब जो इफ़ द व्रत वॉज एन अलॉय ऑफ गोल्ड, अगर वो गोल्ड की या सिल्वर की या मेटल अदर चीज़ उसमें मिक्स है, द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस वुड बी डिफरेंट. तो क्या होगा, जो पानी वो डिस्प्लेस करेगी, हटाएगी, वो कैसा होगा, डिफरेंट होगा. ठीक है. आर्किमिडीज फाउंड दैट द व्रत डिड इंडीड डिस्प्लेस मोर वाटर देन द लंप ऑफ गोल्ड ऑफ द सेम वेट. तो उसने ये देखा कि वो जो व्रत थी, ठीक है, उसने ज़्यादा पानी डिस्प्लेस किया
लंप ऑफ गोल्ड की जगह, जो लंप ऑफ गोल्ड था उसकी जगह उसने ज़्यादा पानी डिस्प्लेस किया। किसने? जो उसने लंप डाला था उसमें, मतलब उसने लंप ऑफ गोल्ड ने कम वाटर डिस्प्लेस किया और जो उसकी व्रत थी जो उसने बनवाई थी उसने ज़्यादा वाटर डिस्प्लेस किया। अब इसका मतलब क्या हो गया? दैट मीन्स उसमें मिलावट है, ठीक है। सेम वे प्रूविंग दैट नो मैटर हाउ ब्यूटिफुली क्राफ्टेड इट वॉज द व्रत वॉज नॉट मेड ऑफ प्योर गोल्ड। सो तो वो ये कहता है, इस बात से ये प्रूफ हो गया और ये मैटर बिल्कुल नहीं करता है वो कितना ब्यूटीफुली बनाया गया। मैटर इज दैट इट वॉज नॉट मेड ऑफ प्योर गोल्ड। मैटर बस इतना था कि वो प्योर गोल्ड का नहीं था। सो it was the wreath was not made of pure gold and that the goldsmith had cheated king Hiero। और ये प्रूफ हो चुका था कि गोल्डस्मिथ ने चीट किया है हायरो को। so the goldsmith was summoned to the court। द गोल्ड स्मिथ वॉज समन टू द कोर्ट, बुलाया गया उसको कोर्ट में, एंड पनिश्ड फॉर हिज डीड, और उसको उसके इस काम के लिए पनिश किया गया। एंड आई थिंक आई हैव फॉरगॉट टू टेल यू द राइटर ऑफ द चैप्टर हु हैज़ रिटन द स्टोरी, मनी मेहरा। मनी मेहरा वॉज द राइटर ऑफ द चैप्टर हु हैज़ रिटन दिस ब्यूटिफुल स्टोरी। एज यू ऑल हैव लिसन द स्टोरी वॉज टू लेंथी बट इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग एंड ऑल्सो डिफ़िकल्ट। It is a difficult story for you, so everybody listen it very carefully, okay? And very interesting story. By this story you came to know about the principle of or Archimedes, that हाँ दैट व्हाट प्रिंसिपल ही हैड गिवन, ठीक है, उसने ये प्रिंसिपल दिया था। इट डजेंट मैटर व्हाट इज़ द साइज ऑफ द व्हाट इज़ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द, ठीक है, जिसकी जितनी ज़्यादा डेंसिटी होती है वो उतना कम वाटर डिस्प्लेस करता है। दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट एज यू ऑल हैव सीन, क्योंकि कई लोग होते हैं कि क्या कहते हैं कि जैसे सपोज़ आपने देखा होगा, आप किसी बलून को या किसी बॉल को वाटर पे डालिए, अभी आप लीजिएगा एक बकेट में वाटर लीजिएगा और उसमें बॉल को डालिएगा, तो आप क्या देखेंगे? आप ये देखेंगे कि वो बॉल ऊपर रहेगी, नीचे नहीं जाएगी। क्या होता है जब हम पानी में वाटर में जब चीज़ को डालते हैं तो वो अपने बराबर भार तो वो उतनी जगह उसने डिस्प्लेस करी नहीं ले पाई, तो क्या होता है नीचे से एक फोर्स लगता है जिसकी वजह से वो क्या करता है चीज़ों को ऊपर की तरफ फेंकता है। इसीलिए जो बॉल होती है वो पानी में नहीं डूबती है। और अगर ये बल ना लगे तो शिप जो होगी, बड़ी बड़ी शिप होती है ना, वो पानी में कैसे तैरती रहती है। आप एक कॉइन फेंकिए वाटर में, क्या होगा? वो तो डूब जाएगा ना। सो दिस इज़ द डिफरेंस एंड दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ। आज आप देखिएगा एक बॉल डालिएगा और एक कॉइन डालिएगा बकेट में, देखिएगा कौन डूब जाता है। इट इज़ ओनली डिपेंड ऑन द डेंसिटी। ये सारी चीज़ें डेंसिटी वॉल्यूम की ही होती हैं। ओके, सो आई होप यू ऑल understand the chapter. There is no problem in chapter. If you have any confusion or any type of doubt, then write in comment box. I will clear your confusion. And it is a tough chapter, so everybody listen it very carefully. बहुत अच्छे से इसको सुनेंगे और आज ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है, करके देखेंगे क्या होता है। एक कॉइन डालिएगा और बताइएगा कॉइन का क्या हुआ। एक बॉल डालिएगा, बॉल जिसको बोलते हैं ना, गेंद, उसको डालिएगा, देखिएगा डूब रही है कि नहीं, ठीक है, फिर बताइएगा। और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप डाल के देखिएगा और बताइएगा विच थिंग्स विच थिंग्स फ्लोट्स एंड विच थिंग्स सिंक, कौन सी चीज़ें डूब जाती हैं और कौन सी चीज़ें तैरती हैं, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट ज़रा करिएगा। टुमारो आई विल आस्क, है ना, मैं पूछूंगी कल आपसे, हाँ, और रियल में करिएगा। कोई भी चीज़ ले लीजिए, घर में इतनी सारी होती हैं, कुछ भी ले लीजिए आप, अपने टॉयज़ ले लीजिए छोटे छोटे, उनको डुबो के देखिएगा क्या होता है, सिंक करते हैं कि फ्लोट करते हैं। फिर एक लिस्ट बनाइएगा, मैं जब कल पूछूंगी, और रियल एक्सपेरिमेंट लिखिएगा, ये नहीं कि कहीं से पढ़ के लिखो। देखिएगा जो डूब जाए कोई बात नहीं, एक बकेट लीजिएगा, बकेट में वाटर फिल करिएगा और वाटर कुछ अपनी चीज़ें, आप एक कॉइन ले लीजिएगा, मार्बल्स ले लीजिएगा, ठीक है, टाइल छोटी सी मिल जाए तो ले लीजिएगा, और स्टोन ले लीजिएगा, है ना, अपनी पेंसिल डुबो के देखिएगा क्या होता है, स्केल ले लीजिएगा, ठीक है, आपके टॉय होते हैं छोटे छोटे जो ख़राब ना हो, उनको डुबो के देखिएगा और फिर बताइएगा क्या डूबा
क्या सिंक किया और क्या फ्लोट किया. फ्लोट मीन्स तैरना एंड सिंक मीन्स डूबना. क्लियर. So actually I am your English teacher, not science teacher. But try this. Okay, so that is enough for the today, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया है वीडियो, फिर इससे ज़्यादा ये सेंड करने में प्रॉब्लम होगी. सो ऑन नेक्स्ट डे, दैट मीन्स ऑन मंडे, वी विल कंप्लीट अवर एक्सरसाइज एंड activity. That is clear to all of you. Okay, thank you for watching the video. Thank you and have a nice day.